जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਅਨਬਾਇਸਡ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਸਰਕਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਖੁਦ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ, ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੈਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ।
ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਟਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੇ ਕਰਟਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਟਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫੋਕਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਮਾਲਾ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੀਚੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਕਿ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, इतना सारा लव यू गुरु महाराज जी, लव यू, लव यू, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना। राज अंकल थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना। इस सृष्टि के हर कण कण का शुकराना, शुकराना, शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि गुरुपा ने आज मुझे प्रेरणा दी है संगत जी फिर से कि मैं शुक्राना सत्संग जो है फिर से सब संगत जी के साथ शेयर करूं। संगत जी मैं गुरुपा से माफ़ी भी मांगती हूं संगत जी, क्योंकि बहुत देर से संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पा रही थी संगत जी। संगत जी गुरुपा की असीम कृपा संगत जी गुरुपा ने मुझ पे करी है संगत जी। उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से संगत जी मेरे बहुत सारे काम बने हैं संगत जी। संगत जी आज मैं अपने गुरुपा की महिमा का ही बखान करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी अगर मैं आपको बताऊँ संगत जी तो संगत जी मेरी लाइफ में संगत जी बहुत सारी चीज़ें जो हैं संगत जी, बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो थी उनमें थी संगत जी। मतलब हर जिसको बोलते हैं पहलू जो था संगत जी उसमें जैसे गांठें पड़ी हुई थी संगत जी। लेकिन संगत जी गुरुपा का बहुत ही क्लियर कट मैसेज संगत जी मुझे आता था कि संगत जी की तुझे अलग अलग तरीके से काम करने की ज़रूरत है
और तुझे इसके लिए तैयार भी होना चाहिए, लेकिन तू फिक्र नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ संगत जी। संगत जी, मुझे बहुत बारी गुरुपा का ये मैसेज जो है ये आया संगत जी कि तुझे अलग अलग तरीके से काम करने की ज़रूरत है संगत जी, क्योंकि बहुत सारे पहलू जो थे संगत जी सब बिखरे पड़े हुए थे संगत जी। लेकिन गुरुपा की कृपा, उनके आशीर्वाद और उनके साथ से संगत जी पता नहीं संगत जी वो सब बिगड़े हुए काम कैसे एक एक करके संगत जी बनते गए संगत जी। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैंने पहले भी शेयर किया था संगत जी के साथ कि बहुत देर से संगत जी हमारी फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा था संगत जी, एक दोनों भाइयों के बीच में कोर्ट केस था संगत जी। लास्ट 13 ईयर से संगत जी ये कोर्ट केस चल रहा था संगत जी। मतलब दोनों भाई आपस में किसी भी चीज़ पे संगत जी एग्री नहीं होते थे संगत जी। तो मतलब वो कुछ चांस दिखता नहीं था कि मतलब इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होगी या कभी ये फैसला हो पाएगा संगत जी। लेकिन संगत जी शायद गुरुपा की कृपा से संगत जी, उनके आशीर्वाद से संगत जी, मुझे पता भी नहीं चला संगत जी कि किस तरह से चीज़ें संगत जी गुरुपा ने जैसे हाथ पकड़ के ये सब चीज़ें कराई। उन्होंने एक ऐसा करिश्मा किया संगत जी कि वो कोर्ट केस जो है संगत जी वो सेटलमेंट पे आ गया संगत जी। ये दोनों भाइयों का आपस में एक एग्रीमेंट संगत जी हुआ है संगत जी। तो मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई असीम शक्ति संगत जी जो है संगत जी, जो ये सब काम करवा रही है संगत जी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड किसी भी बात में मानते नहीं थे संगत जी, वो कभी भी किसी चीज़ में एग्री नहीं होते थे संगत जी। लेकिन पता नहीं कैसे संगत जी गुरुपा ने कौन सा करिश्मा संगत जी किया, लेकिन वो इस एग्रीमेंट के लिए राजी हो गए संगत जी। संगत जी फिर बहुत देर से हमारी एक प्रॉपर्टी थी संगत जी, वो भी नहीं बिक पा रही थी। बहुत मेहनत की संगत जी मैंने और मेरे बेटे ने संगत जी, जबकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे संगत जी। लेकिन शायद गुरुपा का आशीर्वाद था संगत जी, यहाँ पे भी शायद नहीं संगत जी, गुरुपा का ही आशीर्वाद था संगत जी कि वो भी गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी वो हमारी प्रॉपर्टी संगत जी बिक गई। संगत जी मुझे मतलब खुद नहीं पता चला, लेकिन गुरुपा का जैसे मैसेज था कि मतलब कि मुझे एक एक करके जो है काम करने की ज़रूरत है संगत जी, शायद वो यही मैसेज था संगत जी की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी, बहुत सारी कड़ियाँ जो थी वो संगत जी सब खराब थी संगत जी। और गुरुपा ने कैसे संगत जी मेरा हाथ पकड़ के मेरा मार्गदर्शन करते हुए संगत जी एक एक काम संगत जी गुरुपा मेरा बनाते चले गए, मेरा हाथ पकड़ के संगत जी कराते चले गए। ये सिर्फ गुरुपा की कृपा है संगत जी, क्योंकि संगत जी मुझे लगता ही नहीं था कि ये चीज़ें हल हो पाएंगी। लेकिन संगत जी मतलब वो चीज़ भी संगत जी प्रॉपर्टी बिक गई संगत जी। और संगत जी फिर हम लोग क्योंकि संगत जी दोनों भाइयों की डिवीजन होनी थी संगत जी, तो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था संगत जी, तो हमें ये घर छोड़ना था संगत जी। तो मुझे कोई दूसरी चीज़ जो थी संगत जी, दूसरा घर देखना था संगत जी। वो भी संगत जी गुरुपा की कृपा से संगत जी, गुरुपा ने ही अपना ब्लेस्ड किया हुआ घर संगत जी मेरे लिए संगत जी ढूंढा। गुरुपा ने मुझे जो है हिंट दिए संगत जी कि ये तेरे सपनों का घर जो है तुझे बहुत जल्द मिलेगा संगत जी। तो बाई चांस संगत जी ड्रीम होम अपार्टमेंट संगत जी देखिए, गुरुपा का मैसेज था तेरे सपनों का घर, तो संगत जी उस जो सोसाइटी का नाम ही ड्रीम होम अपार्टमेंट्स है संगत जी। तो वहाँ पे संगत जी हमने जो है संगत जी एक फ्लैट जो है संगत जी वो देखा है संगत जी। और संगत जी गुरुपा की कृपा से बहुत जल्द संगत जी ये काम भी संगत जी बनने वाला है। बस ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की कृपा है संगत जी। उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था संगत जी, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें रास्ते में थी, बहुत सारी चीज़ें खराब थी संगत जी। लेकिन गुरुपा ने संगत जी एक एक करके संगत जी वो सारी उलझने संगत जी, वो सारी चीज़ें जो खराब थी संगत जी, गुरुपा बनाते चले गए, बनाते चले गए संगत जी। बड़ी सारी चीज़ें संगत जी ठीक हुई। नो डाउट बड़े सारे चैलेंजेस जो हैं इन बिटवीन आए संगत जी, बहुत सारी जगहों में संगत जी हम फंसते हैं, लेकिन गुरुपा हमें हाथ पकड़ के निकाल लेते हैं सब मुश्किलों से संगत जी। गुरुपा ने संगत जी इतना सक्षम मुझे बनाया है संगत जी। गुरुपा का हमेशा यही मैसेज मेरे लिए होता था कि तू अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले संगत जी। तो ये गुरुपा का आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई संगत जी।
तो मैं अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सिर्फ सिर्फ आपके ही मार्गदर्शन से, आपकी ही कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से आपकी बेटी यहाँ तक पहुंची है संगत जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है संगत जी कि गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंजिल तक ले जाएंगे संगत जी। जो काम संगत जी गुरुपा ने अपनी बेटी से करवा रहे हैं संगत जी, वो बहुत जल्द गुरुपा की कृपा से संगत जी पूर्ण होगा संगत जी। तो संगत जी मैं आपको बताऊं संगत जी कि गुरुपा संगत जी जब हमारा हाथ थामते हैं संगत जी, जब हम पे कृपा करते हैं संगत जी, तो वो हमें समझ भी नहीं आता संगत जी वो कैसे हाथ पकड़ के हमसे सब काम करवा लेते हैं संगत जी। संगत जी मेरी लाइफ में सारी ही चीज़ें जो थी जिसको बोलते हैं कि वो नामुमकिन लग रही थी संगत जी, कोई भी चीज़ सुलझी हुई नहीं थी संगत जी, लेकिन गुरुपा की कृपा, उनके आशीर्वाद से संगत जी एक एक करके सब कड़ियाँ सुलझती गई संगत जी। तो ऐसे करके संगत जी बहुत सारी कृपाएं, बहुत सारे आशीर्वाद संगत जी गुरुपा ने मुझे दिए हैं संगत जी। मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी कि मैं गुरुपा का शुक्राना नहीं कर पाई संगत जी। तो गुरुपा आप प्लीज़ अपनी बिटिया को माफ़ करिएगा गुरुपा की मुझे आपने इतनी इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कृपाएं संगत जी गुरुपा ने मुझ पे की संगत जी। लेकिन संगत जी मैं जो है क्योंकि संगत जी कामकाज में इतनी बिजी रही संगत जी कि मैं गुरुपा का शुक्राना नहीं कर पाई। देखिए गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस भी आए मुझे कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा कि मेरे शुक्राना में बहुत देर हो गई गुरुपा, लेकिन गुरुपा आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद के बिना आपकी बेटी अधूरी है गुरुपा। मुझे हमेशा आपका साथ चाहिए गुरुपा, आपका प्यार भरा हाथ हमेशा मुझे अपने सिर पे चाहिए गुरुपा। अपनी बेटी का हमेशा साथ देना गुरुपा। आपके साथ से, आपके आशीर्वाद से ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई हैं गुरुपा। आपकी बेटी जो है गुरुपा इतनी सक्षम हो गई है गुरुपा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी गुरुपा कि ये सब काम मैं कर पाऊंगी गुरुपा। लेकिन आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से गुरुपा ये सब काम बन पाए हैं गुरुपा। और मैं यही आशा करती हूँ गुरुपा कि आगे भी आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के सब काम पूर्ण करेंगे गुरुपा। आपका आपका जितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है संगत जी। गुरुपा पे पूर्ण विश्वास करिए संगत जी। गुरुपा आपको पता भी नहीं चलेगा संगत जी कि किस तरह से आपके काम बनाते जाएंगे संगत जी। मुझे खुद लगता था कि ये काम कैसे बन रहे हैं संगत जी, खुद ब खुद काम बनते जा रहे हैं संगत जी, क्योंकि गुरुपा का हाथ मेरे सिर पे है संगत जी। वो मेरा हाथ पकड़ के सब काम करवा रहे हैं संगत जी। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपकी दुआएं, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके प्यार की वजह से आज ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं गुरुपा। गुरुपा ऐसा ही प्यार, ऐसा ही अपना आशीर्वाद हमेशा अपनी बिटिया को देते रहिए, सब संगत पे लुटाते रहिए गुरुपा, ताकि सब संगत हमेशा खुश रहे गुरुपा। और हमेशा गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो पूरी संगत को मिले गुरुपा। और जो आंटी ये मेरा सत्संग शेयर करती हैं गुरुपा, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, ताकि उनके जीवन में भी हमेशा सुख समृद्धि बने रहे गुरुपा। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा की कृपा से संगत जी, उनके आशीर्वाद से संगत जी बहुत जल्द मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा जी का मैसेज आया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, आपकी सदा जय गुरुपा। आपको कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन करती हूँ। अरदास करती हूँ गुरुपा जी, मेरे प्यारे गुरु परिवार जी को खुशियाँ देना, अच्छी सेहत देना,
उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना दातिया। मेरे मालिक आपकी जय हो, जय हो, जय हो। संगत जी अभी भी सजा भी पा रहे हैं, सजा पा रहे हैं मेरे ससुराल वाले, लेकिन इतने बेशर्म हैं, अभी भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भेज ही रहे हैं। संगत जी मेरे गुरुपा जी ने सब संभाल लिया है। गुरुपा कहते हैं कि बेटा तू परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा, कोई भी नेगेटिविटी अब तेरे आसपास भी नहीं आएगी। जैसे जैसे वो भेजेंगे मैं वैसे वैसे वापस भेजूंगा उनके पास। संगत जी भेजते हैं गुरुपा, ठीक है, मेरी न्यू लाइफ ब्लेस कर देते हैं हर बार गुरुपा। आपको मतलब शुक्राना मेरे मालिका जी, आपकी जय हो। मेरे बच्चों मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। कहने को दादी हैं, ताई हैं, ताऊ हैं, बुआ है, इन सब ने मिलके मेरे बच्चों के ऊपर भी नेगेटिविटी भेजी। संगत जी इतने गंदे फैमिली है, दिल उठ गया सच्ची। ऐसे रिश्तों से दिल उठ चुका है मेरा, और बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत भी बुरा लगता है कि ऐसे रिश्ते होते हैं। मैंने बड़े दिल से अपनाया इन सबको, बहुत प्यार दिया, लेकिन इन्हीं लोगों ने मेरे पीठ पे खंजर भोंक दिया, खंजर घोंप दिया। संगत जी आज भी मैं उठ गई हूँ, ठीक है संगत जी, ऊपर ने मुझे बहुत संभाला, उठ गई, उठती हूँ मैं, अब मैं खाना पीना खाने लगी हूँ, लेकिन इसने गंदी नेगेटिविटी की वजह से मैं सारा दिन बेड पे ही लेटी रहती हूँ, पूरी बॉडी में दर्द रहता है, किस किस बात का पता ही नहीं। बुखार रहता है, बुखार रहता है और पूरी बॉडी में पेन होती है, काम करने का मन नहीं करता संगत जी। बस मैं लेटे लेटे भी मंत्र जाप करती रहती हूँ, मंत्र जाप का जपती रहती हूँ और सत्संग सुनती रहती हूँ। जिंदगी बड़ी परेशानी में तो है। एक मेरे गुरु भाई हैं जिन्होंने मुझे संभाल रखा है, नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाता संगत जी। गुरु जी ने संभाल रखा है सारा घर। मेरे बच्चे बहुत परेशान थे, बीमार रहते थे, बार बार एक्सीडेंट होते थे इनके, और सब गुरुपा जी ने बचाया उनको, मेरे बच्चों को भी गुरुपा जी ने बचाया। मेरे गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करूँगी, मेरे बच्चों की तरफ से भी दिल से शुक्राना शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु जी बोलते हैं बेटा तू परेशान मत हो, कुछ दिन की बात है, अब ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहा, और इन लोगों को सजा दूंगा अब मैं, क्योंकि ये नहीं मान रहे अब। और तू चिंता मत कर बेटा, तू खा पी आराम से जाप कर, शुक्राना कर। इसलिए संगत जी मैंने आज शुक्राना किया गुरु जी का, मेरे गुरुपा जी का इस सहारा है मुझे संगत जी। नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ होती, क्या होता मेरा। संगत जी मेरे तो अंकल जी भी बोल रहे थे घर से बाहर निकल, तू घर से बाहर निकल यहाँ से, और तू तो ऐसे ही मरेगी, तू तो ऐसे ही मरेगी। ये अंकल जी भी तो साथ में मिले हुए हैं इन सबके। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ,
लेकिन विश्वास अटल है। संगत जी, मेरा विश्वास अटल है गुरु जी के ऊपर। मेरे गुरुपा जी, आप पे मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। आप मुझे इस गंदगी से, इस कीचड़ से जल्द ही निकाल लेंगे। संगत जी, आपको अगला शुक्राना सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ। मैं गुरु जी मुझे प्यारी सी गुड न्यूज़ देंगे और मैं आपको नया शुक्राना सुनाऊंगी। अब मैं विराम करती हूँ सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना वेदात्या जी। गुरु जी, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा। मेरे परमात्मा जी, आपकी सदा जय जय, आपकी सदा जय जय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। आज 22 सितंबर 2025 आज का ही शुक्राना है मेरा। आज मेरे गुरु महाराज ने मेरे पे इतनी बड़ी मेहर करी है, मेरी आंटी भी इतनी बड़ी मेहर करी है, उसको नया जीवन दान दिया है मेरे गुरु जी महाराज ने। मेरे गुरु महाराज ने इतना बड़ा कष्ट काटा है मेरी आंटी जी का कि मैं मतलब दिल से ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब गुरुजी के सामने बैठा था, मैंने गुरुजी आज इस कष्ट से बचाओ, मैं आज ही अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा। तो सत्संग जी, सत्संग ऐसा था कि आज 4:15 एक्चुअली मैं अपने घर से 300 किलोमीटर दूर रहता हूँ जॉब के लिए, अलग अकेला। तो मेरी आंटी और मेरा बेटा दोनों रहते हैं और एक मेरी बेटी वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गई हुई है। तो सत्संग जी, गुरुजी 4:30 बजे मेरी उसका वाइफ मेरी आंटी का फ़ोन आता है कि मेरे चेस्ट पे थोड़ा थोड़ा ना पेन हो रहा है। तो मैंने बोला कि पेन हो रहा है तो थोड़ा घूम फिर के देखो, पानी पुनी पियो, अपना बीपी चेक करो। तो घर पे इंस्ट्रूमेंट है, तो उन्होंने बीपी चेक किया तो कहती बीपी तो ठीक आ रहा है। तो मेरे को भी लग रहा है कि बीपी शायद, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट मेरा थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, एक बार डॉक्टर को चेक कराया हो। तो उस टाइम 4:30 का टाइम था, तो बोले कि 5:30 से 5 बजे डॉक्टर आता, फिर मैं देखती हूँ। तो बेटा ट्यूशन पढ़ने गया वो भी आ जाएगा। चलो बातचीत करने लगी। उसके बाद मैं कहती चलो मैं आराम कर ले। चलो ठीक है, मैं कहा 4:30 5 5:15 बजे मैंने उनको फिर फ़ोन किया। तो करी कि दर्द तो हो रहा है, तो लेकिन मैं काम करा रही हूँ, काम वाली आई है। तो मैं कभी तू आराम कर लेती, कहती नहीं कोई बात नहीं, काम करने लगी। चलो मैं अपने जॉब पे काम करता रहा। तो 6:15 बजे 6:20 पे मैंने फिर फ़ोन किया संज्ञा जी कि आपका कैसे दर्द है। कहती दर्द मेरे हो रहा बहुत, मतलब उसे ऐसे लग रहा था जैसे दर्द हो रहा है उसको। तो मेरे तो एकदम टेंशन शुरू होगी। मैं कहा ये क्या हो गया, और मैं इतनी दूर बैठा हूँ। तो मैं बातें करे, मैं कहूँ तू ये कर वो कर, जो भी मैं करी वो सब कर लिया, अभी दर्द हो रहा है मेरे। तो मैंने कहा ऐसे जैसे करते हुए 6:30 हो गए, हाँ 6:15 हो गए। तो मैंने उसको बोला कि उससे पहले मैंने उनको बोला था कि आप एक बार ना अपना जल प्रसाद गुरु जी का पी लो। करी ठीक है, लेकिन उन्होंने पिया नहीं। तो 6:30 मैंने फ़ोन किया, वो करी नहीं मैंने जल प्रसाद पिया नहीं। तो मैंने उनको डांटा कि तू पहले जल प्रसाद पी, तो मेरे को वीडियो कॉल करी। तो फिर वो गुरु जी के पास गई, तो उसने साथ के साथ गुरु जी महाराज के जोत भी जगाई और फिर उसने जल प्रसाद लिया। जल प्रसाद के बाद वो थोड़ी सी ऐसे लग रही थी, मतलब उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी। तो मेरे को उसके फेस पे लगा, नहीं तो छोटी मोटी चीज़ वो ज़्यादा इतनी सोचती नहीं है, पर वो मेरे को टेंशन हो रही थी। तो जैसे जैसे 6:30 6:45 हुए, तो मैंने कहा कि ये तो फिर मेरा बेटा 7 बजे तक ट्यूशन पढ़ता है। तो मैंने 6:30 जैसे उसे बोला कि मेरे हो रहा है, तो मैंने बेटे को फ़ोन किया। तो उसने उठाया नहीं। फिर उसका फ़ोन आया कि पापा, मैं कहा बेटा तू जल्दी पहले घर पहुँच, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, उनको डॉक्टर को दिखाना है। बोला ठीक है पापा। उसको भी 10-15 मिनट लग ही जाते, काफ़ी थोड़ा दूर जाता है। तो इतने में उनसे बात करता रहा। वो प्रॉब्लम करी हाँ मेरे हो रहा है। तो उसकी आवाज़ ऐसी हो रही थी जैसे पेन ज़्यादा है। तो मेरी परेशानी और बढ़ने लगी। तो मैंने बोला कि ठीक है तू एक बार फ़ोन बंद कर।
तो मैंने पहले तो अपने नॉन को फ़ोन किया, फ्रेंड को, मैं कह रहा ऐसे ऐसे वाइफ की है, वो कह रहा मैं बात करता हूँ। उसने बात करी भी, तो आप ये कैप्सूल खा लो पेट वाला, उसके वाला, कि जब कई बार क्या होता है गैस बन जाती है, उसके चक्कर में हो जाता है। तो इन द मीन टाइम मैंने किया कि मेरे डॉक्टर फ्रेंड है, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है, अभी दीपा की, मेरी आंटी का नाम दीपा है, कि उनके ना चेस्ट में पेन हो रहा है काफ़ी देर से यार, लेकिन अब थोड़ा बड़ा है। तो बोला क्या? मैं क्या, तू एक काम कर, डॉक्टर है वहाँ पे, उन काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं वो, तो उनसे बात करके एक बार इनकी ईसीजी करा लेते हैं। बोला ये भी रुक। वो बेचारे ने दो मिनट के बाद उनका फ़ोन आ गया कि मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है, आप एक काम करो, दीपक बोलो कि हॉस्पिटल पहुँचे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने फिर इतने को बेटा पहुँच गया। बेटा बोला क्या? मैं कहा बेटे तू ऐसे कर, इनको लेके और तू पहले वहाँ पे डॉक्टर के पास जाके आ। तो वो गाड़ी चला के दी, मैं चला नहीं पाऊंगी, मैं गाड़ी तो स्कूटर पे जा, जैसे मर्जी कर जाना तो पड़ेगा। तो बेचारी वो बेटे के स्कूटर के साथ बैठ के तो वो डॉक्टर के पास पहुंची। तो रास्ते में मैंने बात करी तो कि थोड़ा सा फ़र्क हो रहा है, लेकिन मेरे को रोना आए गाड़ी में, उसको भी आए। तो मैं कहा मैं तो सीधा आ रहा हूँ। तो वो करी भी आप इतनी लेट हो जाओगे, 5 घंटे लगेंगे, कब पहुँचोगे, रात को अंधेरा भी क्यों आओ, कल सुबह। मैं कहना मेरा मन नहीं टिकोगी। देखो संगत जी, जीवन साथी है, साथ दे रही है, उसके बलबूते पे हम जी रहे हैं, मेरा परिवार जी रहा है, तुम कैसे रह सकूँगा साथ संगत जी। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं परेशान हूँ, तो मैं तो जाऊँगा। तो मैं थोड़ा जैसे ऑफिस से निकला तो इन द मीन टाइम वो पहुँचने वाली थी। तो बेटा बोला कि पापा अभी एक बार टेस्ट करा ले। मैं कहा बेटे कोई बात नहीं, मैं घर से सामान लेके आता हूँ, अपने कपड़े ले लूँगा सारे, जो धोने वाले भी दूसरी भी उठा लूँगा। तो मैं सीधा संगत जी अपना गुरु मंत्र जाप, जैसे ही ऑफिस से निकला मंत्र जाप करता करता गुरुजी को अरदास करता हुआ, रोता गुरुजी को अरदास करता हुआ जी मैं अपने घर पहुंचा, फिर सामान ले लूँगा। लेकिन जब मैं अपने उसमें रूम में आया तो पता नहीं क्या गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला। मैंने बोला नहीं, जब तक टेस्ट होते हैं उसके तब तक मैंने क्या किया जी, गुरुजी महाराज के जोत जगा ली और वहीं बैठ के अपना मंत्र जाप 7:20 की बात है संगत जी, 7:20 पे मैंने गुरुजी महाराज के अपना मंत्र जाप शुरू कर दिया और जोत जगाता गया। और 7:30 बजे उनके टेस्ट होने शुरू हो गए थे। मैं अपना मंत्र जाप करता चला गया और जोत जगाता गया। जैसे संगत जी जोत कम होती थी, लास्ट स्टेज पर जाती थी, मैं तभी दूसरी जोत जगाता था। जोत मैंने कंटिन्यू जगा के रखी और मंत्र जाप लगातार करता चला गया गुरुजी महाराज का। वो बीच में रोता चला गया, जितनी दिमाग पे टेंशन थी। तो 8 बजे मेरे को फ़ोन आया कि इको करिए, इको ओके आई है। तो मैंने बोला चलो शुक्र, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वो बोला 2 टेस्ट भी करे हैं, इनके ब्लड के टेस्ट लिए हैं, अभी ईसीजी करनी है। तो ठीक है। तो मैं अपना मंत्र जाप शुरू कर चलता चला गया, अपने गुरु महाराज के चरणों में अरदास करता चला गया, गुरुपा आज आपने संभालना है, अगर कुछ हो गया तो अपना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा गुरुजी महाराज। तो अपना मंत्र जाप, लेकिन एक दिल में संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि दिल में ना एक वो थी कि ठीक हो जाएगा। मतलब जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि जब दिल से आवाज़ आए कि यार प्रॉब्लम ज़्यादा है और दिल से आवाज़ आए कि सब ठीक हो जाएगा, तो आप तो समझ लो गुरुजी हैं। हाँ संगत जी, यार ये आज प्रैक्टिकल देखा मैंने प्रैक्टिकल देखा कि मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी कि सब ठीक है, लेकिन साइकिल दिमाग ऐसा था कि हाय ये वो करता करता साथ संगत जी मैं करता गया। 8:30 बजे मेरे को फ़ोन आया कि जो इको ओके है, ईसीजी ओके है, और जो ब्लड टेस्ट किए थे, ब्लड टेस्ट संगत जी वो था कि कोई अटैक तो नहीं आया। तो वो कह रहा नहीं नेगेटिव है, ओके है वो भी। चलो गुरुजी महाराज शुक्राना गुरुजी, आपने मेहर रखी, ईसीजी ओके आई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो भी ओके आई। उसके बाद बोल दे कि गोली दी है इनको जो पेन है। फिर एक्सरा किया साथ संगत जी, एक्सरा भी किया कि कोई मसल्स हैं, तो उसमें थोड़ा मसल्स का खिंचाव आया था, लेकिन वो भी नॉर्मल ओके था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद डॉक्टर बोला कि अभी ये एक और ईसीजी करेंगे जिससे ये पता चले कि कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है। तो ठीक है। तो मैं अपना मंत्र जाप करता गया। 8:30 बजे बाद संगत जी मेरे को कोई फ़ोन ही नहीं आया, और मैंने फ़ोन किया नहीं, मेरे को दिल में इतना डर बैठा होता कि मैं फ़ोन करूँगा कुछ ऐसा हो जाए, उधर से फ़ोन आएगा। तो करते 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 साथ संगत जी 9 बज गए, 9:15 हो गए। मैं क्या अभी फ़ोन क्यों नहीं आ रहा। इन दफ़े वाइफ का फ़ोन आया। तो इन द मिनट तब तक वो घर पहुंच गई। करीब अभी घर पहुंची। मैं कहा भी तुम मेरे को एक बार बता तो दे यार, मैं इतना परेशान हूँ। करीब बस फिर वहाँ से डॉक्टर ने बोला ठीक है, रिपोर्ट्स दे दी हैं, ओके है, गोली दी है। तो फिर मैं घर आ गई। तो साथ संगे जी तीनों ईसीजी भी ओके आई,
ईसीजी की रिपोर्ट भी ओके आई, इको भी ओके आई, जो ब्लड के सैंपल थे वो भी ओके आई, उनकी जो शुगर थी वो भी 127 नॉर्मल आई। सब गुरुजी ने ऐसी मेहर करी कि आज उन्होंने मेरी आंटी जी को दूसरा जीवन दान दिया है। इसलिए मैं आज गुरुजी तो भी बैठ के बोला था, गुरुजी आज ही शुक्राना करूंगा अपने गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरी लाज रखी है और मेरी आंटी को आज उन्होंने दूसरा जीवन दिया है। हे गुरु महाराज, मैं आपका कितना भी शुक्राना करूँ आज बहुत कम है मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे दीन दयाला। बस इसी तरह गुरुजी महाराज मेरे परिवार की रक्षा करना, हमारे सारे गुरु परिवार की रक्षा करना, हमारे सारे गुरु परिवार को तंदुरुस्ती रिस्क रोटी बख्शना मेरे गुरुपा। आपके सहारे हमारा साडा गुरु परिवार, हम आपके ही आशीर्वाद से चल रहा है मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे दीन, मेरे साथ संगत जी। मेरे से कोई बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, अपने गुरुजी महाराज से भी माफ़ी चाहूँगा। हे मेरे गुरु महाराज, हमारी रक्षा करना। इसी तरह एक और अरदास है गुरुजी को मैंने लगाई है, मेरी बेटी का थोड़ा इशू चला ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई है, कुछ तो सॉल्व हो गया है, मेरे गुरुजी वो भी सॉल्व कर देंगे, सो डैट जो मेरा वो प्रेशर है वो भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरु जी के चरण कमल में रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। क्या होगा गुरु जी आगे मुझे नहीं पता, मेरी ज़िंदगी क्या होने वाली है गुरु जी, मुझे कुछ नहीं पता। आपको अगर ऐसी पति अंकल देना था, आपने क्यों दिया गुरु जी मुझे। मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई गुरु जी, उसके अफेयर भी है गुरु जी। अपने पिता की प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने मुझे मेरे बच्चे को छोड़ दिया गुरु जी। हमें कुछ दे भी नहीं रहा, ना घर दे रहा ना कुछ दे रहा है। कहते म्यूचुअल में तलाक दे दे, म्यूचुअल में तलाक दे दे गुरु जी। एक बच्चे की कस्टडी मांग रहा है गुरु जी, इतने मुझ पे कष्ट क्यों डाल रहे हैं, मैं क्या करूँ गुरु जी। एकदम मेरी ज़िंदगी क्या हो गई गुरु जी, एकदम मेरी ज़िंदगी क्या हो गई। मैं नौकरी अभी अभी मिली है गुरु जी, बस उसको बचाए रखना गुरु जी, उसी से मेरा गुजारा हो सकता है गुरु जी। मेरा तो कुछ नहीं है अपने पास। मेरे भाई मेरी माँ मुझे निकालने की कर रहे हैं कि हमारे घर में कब्जा ना कर ले गुरु जी। मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊँगी गुरु जी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही साईं बाबा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरी ज़िंदगी क्या मोड़ ले रही, क्या हो रहा है मेरे साथ। आपकी लड़की इतनी हिम्मत वाली नहीं है गुरु जी, इतनी परीक्षा मत लो उसकी गुरु जी। मैं तो वो लड़की हूँ गुरु जी, मेरी परीक्षा इतनी क्यों ले रहे हो। एक औरत हो गुरु जी, मैं बच्चे के साथ हूँ, क्यों परीक्षाएं ले रहे हो मेरी गुरु जी। मैं तो मर जाऊँगी गुरु जी, कोई बीमारी लगा के। उस इंसान को आपने एकदम एंजॉय करवा रहे हो गुरु जी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से जी रहा गुरु जी। उसके पास गाड़ी है, सब कुछ है, एंजॉय कर रहा है अपने पिता की प्रॉपर्टी का, अपने पिता की संपत्ति से खूब एंजॉय कर रहा है। हमें उसने दर दर का भिखारी बना दिया गुरु जी। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है गुरु जी, मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो आप। ये कहाँ का इंसाफ है गुरु जी। ये तो कलयुग है गुरु जी, यहाँ पे जो बुरा कर रहा है वो फल रहा है, जो अच्छा कर रहा है वो परेशान हो रहा है गुरु जी। मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाए, हमेशा निकालने की करते रहते, इस घर से निकल, इस घर से निकल, मैं कहाँ जाऊँ गुरु जी, मुझे बताओ, आप बताओ गुरु जी, मैं कहाँ जाऊँ। ऐसे तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगी गुरु जी, मैं नौकरी भी नहीं कर पाऊँगी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा गुरु जी, मेरी राह कहाँ पे, किधर रहूँगी किधर, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा गुरु जी। पर ये मैं हार गई गुरु जी,
अब मैं हार चुकी हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा गुरुजी। आप हरा रहे हो अपनी लड़की को गुरुजी, आप हरा रहे हो गुरुजी। इज्जत बना दो अपनी लड़की की गुरुजी, इज्जत बना दो। दुनिया हंसी उड़ा रही है गुरुजी, मेरी दुनिया, लोग हंसी उड़ा रहे गुरुजी। मेरे अपने भाई, मेरी माँ मुझ पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे गुरुजी। वहाँ मेरे ससुराल वाले मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरा पति उनके साथ मिला हुआ गुरुजी। मेरी क्या ज़िंदगी है गुरुजी, बचपन से दुख देखे गुरुजी, अब भी दुख दिखा रहे गुरुजी। मेरा क्या कसूर था, जब से शादी करके गई गुरुजी उन्होंने मुझे हमेशा परेशानी किया गुरुजी। मेरे पति अंकल के अफेयर थे, सब कुछ देखा गुरुजी, खुशी कभी नहीं मिली गुरुजी। कब तक ऐसा होगा गुरुजी, कब तक? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का गुरुजी, क्या बिगाड़ा था किसी का? बच्चे ने क्या बिगाड़ा था गुरुजी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। रक्षा करो, मेहर करो गुरुजी, हम दोनों माँ बेटे की मेहर करो। आपको ही चौप रखा मैंने गुरुजी, मेहर करो गुरुजी। आप कहते हो तेरा पति अंकल तुझे धोखा दे रहा है, तब तो वो ज़िंदगी भर धोखा ही देगा गुरुजी। तो रिश्ता ख़त्म ही है, मेरा ही है। मुझे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दी वस्ती बलवा दो गुरुजी, मुझे नहीं रहना उसके साथ गुरुजी। अब मुझे नहीं रहना, मैं नहीं रह सकती गुरुजी। शुक्राना सबकी असलियत दिखाने का, शुक्राना गुरुजी। मैं तो पति 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 कर रही थी गुरुजी, आप दिखाते हो, आप सुनवाते हो सत्संग, आप ये भी बोलते हो मैं उसको लेके आऊँगा। क्या लेके आ गए गुरुजी? वो आपके कहने से कहाँ आ जाएगा गुरुजी, वो नहीं आएगा, मुझे पता है गुरुजी, वो नहीं आएगा। वो तो भगवान के कहने से भी नहीं मानेगा गुरुजी। वैसी ऐसा इंसान है वो, तो भगवान के कहने से भी नहीं मानेगा। आप कहते हो कि वो आएगा, उसको मैं लेके आऊँगा, उसको सीधा करूँगा। तो गुरुजी क्या सीधा करके भेजेगा? जो इंसान मैला हो चुका है और औरतों के चक्कर में फंस चुका है, उस इंसान को क्या लाओगे? आप कहते थे मैंने ब्लेस किया तुम दोनों को, तुम्हारी जोड़ी ब्लेस की हुई है गुरुजी। क्या दिखा रहे हो ब्लेस की हुई है? तो इतना कुछ दिखा दिया गुरुजी, आपने तो तोड़ दिया इस रिश्ते में मुझे। मैं तो हार गई इस रिश्ते में गुरुजी। मुझे नहीं पता था मेरे साथ इतना गलत होगा गुरुजी, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था गुरुजी। पर आपने उनको कुछ नहीं कहा ना, उनके घर वालों को ना कुछ, कोई दंड नहीं दिया, कुछ नहीं दिया गुरुजी। अच्छी ज़िंदगी जी रहे, आराम की ज़िंदगी जी रहे वो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा गुरुजी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पैसों की नोक पे मेरे ससुर अंकल ने उसको रख रखा अपने पास, उसमें पैसा लुटाया जा रहा है और वो बस उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। समाज में मेरी बेइज्जती की है, रिश्तेदारी में मेरी इज्जत उछाली है गुरुजी। मुझे उसका न्याय चाहिए गुरुजी। मेरी वीडियोस पता नहीं कौन सी क्या क्या दिखाई है लोगों को, मेरी इज्जत उतारी समाज में गुरुजी, इज्जत उतारी है। मुझ पे गलत आरोप लगा रहे हैं, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक की है, मेरा दिमाग ख़राब करके और वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मुझे उकसा के उन्होंने लड़ाइयाँ करी है गुरुजी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही गुरुजी। शुक्राना, फिर भी शुक्राना, शुक्राना। आगे ज़िंदगी अच्छी कर दो गुरुजी, आप पे डिपेंड हो गुरुजी। आपने बोला तेरे दर्द को मैं ही जानता हूँ, तेरी दुआओं को मैं ही सुनता हूँ, बस तू शुक्राना करता जा, मैं हर मुश्किल आसान करता जाऊँगा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला बेटी तेरे नवरात्रि के पहले दिन माता रानी स्वयं तेरे घर विराजमान हो रही है, तेरे जीवन की सारी नकारात्मकता मिट जाएगी। आज से तेरे घर सुख शांति और सफलता का दीप जलेगा। जल्दी से शुक्राना कर, आशीर्वाद ग्रहण कर, तेरे बच्चों की किस्मत चमकेगी। आज जो तू मांगेगी वह अवश्य मिलेगा। बस श्रद्धा विश्वास शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। मुझे बोला बेटी अब तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, शुक्राना कर, क्योंकि आज मैं तुझे वही दे रहा हूँ जिसका तू बरसों से इंतजार किया। अब तेरे रोने के दिन चले गए, अब दुनिया तेरी सफलता देखेगी और तू ऐश में रहेगी। शुक्राना करना मत भूलना। इस आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद तक पहुँचा। जब तू सेवा बांटेगी तब तरक्की रहना तेरी से होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तेरी ज़िंदगी का ये संघर्ष बस ख़त्म होने वाला है बेटा, तेरे खुशियों के दिन बस आए गए। इस महीने में होगा चमत्कार। चल अब शुक्र अदा कर, चाबी ले जा, कृपा बनी रहेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, एकदम शुक्राना, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। नमः शिवाय, शिवजी दासा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी दासा। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, जय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। हेलो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अपना सत्संग भेज रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप कर दिया। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। बड़े भारी मन नाल भेज रही हूँ मैं। फिर भी ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੇਜ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਤ ਤੇ 60 ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਢਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਤੋਂ। ਇੰਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। दाता जी तत्ती वो न लगाई बार बार शरणाई, चौगिर तुम्हारे राम कर दुख लगे न पाई। सतगुरपुर बेटे दुर्मंत बनाई, राम नाम को दे काली बुलाई। राख लिया तो ढाकना और सब बैल मुटाई, कहो नानक कृपा भई प्रपय सहाय। दादा जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਪਈ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂੰਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਚੀ ਉਹ ਨਿਕਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਰਚੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ।
ਉਹ ਪੂਜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲਮ ਫੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਮਥਿਆ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਓ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ।